فرصت کے لمحات گئے نعمت خدا کی جان لو، کر لو علم نیکیاں جنت کا یوں سامان لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فرصت کے لمحات میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم اپنے فرصت کے قیمتی لمحوں کو اس ہستی کا تذکرہ خیر کرتے ہوئے گزاریں گے جن کی ساری زندگی اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، دین اسلام کی خدمت اور قربانیوں کی لازوال مثال ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ بھی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ کس ہستی کا تذکرہ خیر ہونے جا رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس ہستی کی شان بزبان قرآن۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ یعنی اطمینان اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، صحیح گیس کیا آپ نے۔ ہم بات کریں گے اس عظیم شخصیت کی جنہیں کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فرصت کے لمحات میں ہمارا آج کا موضوع ہے فرصت کے لمحات عاشق صدیق اکبر کے ساتھ۔ موضوع سے متعلق سوالات ہوں گے ہمارے اور جوابات آپ کے۔ مدنی چینل کے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیق بل کے غار میں جا اس پہ دے چکے، اور حفظ جا تو جان فرود غرر کی ہے۔ ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا نام ہے فرصت کے لمحات اور ہمارا آج کا موضوع ہے فرصت کے لمحات عاشقان صدیق اکبر کے ساتھ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ان کا نام کیا؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو ابوبکر جو ہے ان کی کنیت تھی اور صدیق آپ کا لقب تھا۔ نام کیا تھا؟ نام نہیں معلوم۔ چلے مدنی چینل کے ناظرین، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک معلوم نہیں ہوگا۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک تھا عبداللہ، اور آپ کی کنیت تھی ابو بکر۔
اور آپ کا لقب تھا، सिद्दीक। اگر یار غار کا نام لیا جائے تو اسلامی تاریخ کا کون سا واقعہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے؟ جو ان کو سانپ نے بھی ڈس لیا تھا، جو آنسو نکل آئے نبی پاک کے رخسار پہ گرے، ٹھیک ہے نا، یہ اسی طرح سے ہے، نبی پاک اٹھ گئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے، تو انہوں نے بولا کیا ہوا ابو بکر، ان کا آنسو رخسار پہ گرے، پھر انہوں نے لواب دہن لگایا، اور جہاں پہ ڈسا تھا سانپ نے، پھر زہر کا اثر جاتا رہا، وہ تکلیف دور ہو گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، کفار آپ کے تعاقب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں جو ہے وہ آپ نے پناہ لی اور وہاں پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ تو یہ واقعہ ہجرت کے سفر میں پیش آیا، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ ہجرت کی انہوں نے نبی پاک نے مدینے جانے کے لیے، میرے خیال صحیح ہے نا، مولا علی کو اپنے بستر پہ سلایا، یہ وہی واقعہ ہے نا۔ آپ کی کوئی ایسی خصوصیت جو آپ کو یاد ہو؟ خصوصیت تو سب سے بڑی یہ تھی کہ گھر کا سارا سامان، برتن سب دے دیے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہی وہ واقعہ ہے کہ کسی جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سامان وغیرہ لانے کے لیے ارشاد فرمایا، مالی مدد کے لیے ارشاد فرمایا، تو اس وقت سب صحابہ کرام جو جس سے بن پڑتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان سمیٹ کے لے آئے، یہی واقعہ۔ جی ہاں، تو اس جگہ پر ایک شعر کہا گیا ہے کہ شمع کو پروانہ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس۔ صدیق بل کے غار میں جا اس پہ دے چکے، اور حفظ جا تو جان فرود غرر کی ہے، ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ یار غار کا نام آتے ہی اسلامی تاریخ کا کون سا واقعہ ہمارے ذہنوں میں؟ ہجرت کا ہجرت کے واقعہ میں غار کا کیا تعلق؟ کفار آپ کا تعاقب کر رہے تھے؟ ہاں، کفار تعاقب کر رہے تھے، اور اس میں آپ تشریف فرما ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ سانپ کا بھی ایک عجیب وہ ہے ان کا واقعہ کے اندر، جناب ایک سوراخ کھلا رہ گیا تھا، سب نے آپ نے جتنے بھی سوراخ تھے سب بند کر دیے، پھر اس کے بعد ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، آپ نے ایڑی لگا لی، ایڑی لگانے کے بعد جناب وہ اس نے سانپ نے کاٹا، وہ بھی عاشق تھا دیکھنے کے لیے، حضور کا دیدار کرنے کے لیے، تو اس کے بعد پھر وہ آپ کے جب کاٹا تو آپ کے آنسو آنے لگے، جب حضور کا قطرے گرے تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا اس طریقے سے یہ ہوا۔ تو یہ کرم کی بات ہے، بڑے کرم کی بات ہے سرکار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسبت تھی وہ کس طریقے سے؟ حضرت کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی زوجہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی زوجہ تھی۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ۔ پھر سوچیں ذرا، حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر ان کی عمر کا مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ 65-70 سال تو ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی جان کر علم میں اضافہ ہوگا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی، ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کو صحابہ کرام میں کیا خصوصیت حاصل تھی؟ خصوصیت یہ تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ نے سب کچھ قربان کیا۔ جب یار غار کا نام آتا ہے تو تاریخ کا کون سا واقعہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے؟
हिजरत के उसका सफ़र याद आ जाता है। भाई उसी वक्त वहीं से ये चीज़ शुरू हुई एंड में, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार के रंगरे से निकले और आपने मट्टी उठा के उनकी तरफ फेंकी, तो ये अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तूने नहीं मैंने फेंकी। ये मदीसन के नाज़रीन बहुत ही प्यारा वाक़या है सच्ची और पक्की दोस्ती का, कि जब आप गारे सौर की तरफ गए, वो ज़्यादा बुलंदी तो नहीं है उसकी? नहीं, बुलंदी है उसकी, इतनी बुलंदी है कि मैं कम से कम 8 या 10 मरतबा बैठा था रास्ते में। बहुत ऊंचा है वो, बहुत ऊंचा। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चल रहे हैं और मैं भी, आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शानों पे बिठा लिया। ये अल्लाह ताला की बड़ा करम नवाजी थी हज़रत अबू बकर पर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठाया और लेके गए। मैं तो अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाऊं कि वो कैसे ले गए, मुझसे पैदल नहीं चला गया और आपने भी बाप को कंधे के ऊपर ले गए। मदीसन के नाज़रीन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेशुमार खुसूसियत हैं, लेकिन एक खुसूसियत जिसको सुनकर आप भी हैरान होंगे और खुश भी होंगे कि आप वो सहाबी हैं जो ख़ुद भी सहाबी, वालिद भी सहाबी, बेटे बेटियां पोते नवासे भी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुम। हम अपने बच्चों का अकीदा जो है सहाबा किराम के बारे में किस तरह बना सकते हैं, कैसा बनाना चाहिए हमें? इस तरह बन सकता है कि एक तो मेरे हिसाब से जितनी मेरी मालूमात है कि ये मोबाइल फ़ोन जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेतरतीबी हो गई है। इस पे पाबंदी लगाई जाए, कम से कम 18-20 साल तक बच्चों को न दिया जाए, ताकि दीनी माहौल सीख जाएं, अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम सीख जाएं, सहाबा का सीख जाएं, वली अल्लाह का सीख जाएं, तो ये उनके लिए कामयाबी है। अब ये माहौल ऐसा बना हुआ है, बस अल्लाह ताला रहम फरमाए। वैसे बच्चों का अकीदा क्या होना चाहिए? पक्का होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल का और तमाम सहाबा, तमाम वलियों का, तमाम नबियों का, ये सारी चीज़ उनको सिखाना ज़रूरी है, बल्कि माँ बाप की ज़िम्मेदारी है पूरी, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, माहौल जैसा चल रहा है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। मैंने अपने बेटे का शादी की, 2 बेटे की, सबसे पहले मैंने अकीदा पूछा। मैंने कहा तुम अकीदा बताओ, तो बोले यार आज ज़िंदगी में पहला इत्तेफाक है, आपने ऐसे पूछ लिया। लोग पूछने कमाता क्या है, माल कितना है, ये बिल्डिंग किसकी है, ये क्या है, गाड़ी घोड़ा। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे ईमान चाहिए, सहाबा की मोहब्बत चाहिए और नबियों की मोहब्बत चाहिए। जितने भी नबी हैं सब काबिल एहतराम हैं, लेकिन मेरे नबी पाक सबके सरदार हैं, आखिरी नबी। अब ना कोई नबी आएगा ना कोई उम्मत आएगी। अकीदे बच्चों का बिल्कुल 1 नंबर होना चाहिए। अगर कामयाबी चाहते हैं दुनिया में, आखिरत में, अगर अपनी कब्र को चाहते हैं कि हमारी जन्नत बन जाए, कब्र से ही सिलसिला शुरू हो जाता है, आखिरत तो आनी है, उस पर सबका ईमान है। लेकिन बुनियाद अगर अच्छी हो गई तो इमारत भी अच्छी बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फ़ज़ल से, नबी पाक के करम से, सहाबा के सदक़े, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की जूतियों के सदक़े जन्नत में जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बात यह है कि आपका अकीदा सुन्नी है, आप सुन्नियत में हैं? बोले कि हम दावत इस्लामी के अमीर इलियास कादिर साहब के मुरीद हैं। मैंने कहा फिर तो कोई डर ही नहीं है कोई। मदीसन के नाज़रीन को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, अपनी दावत इस्लामी जिंदाबाद। जहाँ जहाँ भी ये पैगाम पहुँचा रही है, अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और जो सहाबी के मामले में इन्होंने जो बात की है, कर रहे हैं, अल्लाह इनमें और बरकत अता फरमाए। मतलब ये क्या बात कर रहे हैं? ये बात करते हैं कि सहाबा से सच्ची मोहब्बत करो, सब सहाबा को मानो, सारे नबी को मानो, सारे वली को मानो। ये सब जो हैं ऐसे लोग हैं कि हमारी सिफारिश करेंगे और हमारे लिए रहनुमाई करेंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के और सच्चे दोस्त हैं। आपको सिद्दीक का लक़ब किस बात पे मिला? नहीं मालूम। सिद्दीक का मतलब मालूम होगा? सच्चाई, सच्चा सच्चा पढ़ा था बहुत साल पहले ना, अब तो दिमाग काम नहीं करता। क्या था? सच्चाई, सच्चा सच्चा। यारे गार का नाम आते ही कौन सा इस्लामी तारीख का वाक़या हमारे ज़हनों में आ जाता है? गारे सऊद। मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। का कोई लक़ब आपको याद होगा?
लकब सिद्दीक। माशाल्लाह, एक तो सदीक और एक और अगर याद हो। नहीं, दूसरा चलिए मैं रहनुमाई कर देता हूँ। अतीक और सदीक दो लकब थे और अबू बकर आपकी कुनियत थी। नाम क्या था? नाम आपका नाम था हजरत अब्दुल्ला। आप ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या निस्बत थी? एक तो दोस्त है और दूसरा ये कि आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के वालिद हैं, तो इस तरीके से आपके ससुर भी हुए। तो बाकी ये है कि यार गार भी रहे हैं, जो कि ना यार मज़ार भी हैं। तो ये कुछ मालूम है। यार मज़ार से क्या मुराद? ये मुराद यही है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में उनकी भी मकसद ये कि कब्र अनवर है जी। इसलिए आपको यार मज़ार कहा जाता है। जी हाँ, यही वजह है। मदीने के नाज़रीन, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। उनमें से एक कि मैं हमेशा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर की ज़ियारत करता रहूं। नंबर दो, मैं अपना माल उन पर खर्च करूं। नंबर तीन, मैं आपके साथ रहूं। तो अल्लाह पाक ने ये तीनों आपकी ख्वाहिशें पूरी कर दी। गारे सौर का जिक्र आता है तो कौन सा तारीखी वाक़या बंदे के जहन में आता है? वो जो आपने अपने कपड़े भी फाड़ कर और है ना वो सुराख बंद किए थे वहाँ के, क्यों किए? वो डर था कि कोई है ना जानवर मूजी ना निकल आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुँचाए। ये बताइएगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम क्या था? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जो है आपका नाम था अब्दुल्ला, लक़ब आपका था सिद्दीक। सिद्दीक। और कोई और लक़ब भी याद है आपको? अतीक। अतीक, माशाअल्लाह। इन दोनों के मानी बता सकेंगे आप? एक का तो माना सिद्दीक सच्चाई, हक बयान करना, सच बोलना, और अतीक यानी जहन्नम की आग से आज़ादी का परवाना है। माशाअल्लाह। ये बताइएगा कि दुनिया में अगर किसी को कहा जाए कि कोई दोस्ती की मिसाल दे जो बेमिसाल हो, ऐसी दोस्ती कहाँ होगी? ऐसी दोस्ती हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर में मिलती है, जिनको यार गार भी कहा जाता है सरकार का। और ये दोस्ती ऐसी थी कि सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैंने हर एक का एहसान का बदला दे दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ के। तो आप ये बताइए कि मुसलमान अपने बच्चे का अकीदा किस तरह महफूज कर सकते हैं? हमारा बच्चे का अकीदा कैसा होना चाहिए? देखिए, आजकल हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे या मुख्तलिफ़ चैनल्स पे या मुख्तलिफ़ लोग कोई अहले बैत की और कोई साहबा की बारे में नाज़ेब अल्फाज अदा करता है, जिससे दोनों सूरतों में ईमान जो है हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। हमारा अकीदा वही होना चाहिए जो हमारे अकाबरीन का अकीदा रहा है, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया मेरे साहबा सितारों के मानिद हैं, तुम इनमें से जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो हमें हुज़ूर नबी करीम के हर साहबी का अदब का तकाज़ा और उनके तरीक़ों पे चलना, अपने बच्चों को साहबा कराम का अहले बैत का की मोहब्बत का दर्स देना, ये हमारे बच्चों को तालीम देना हम सब पर ईमान का तकाज़ा। इसके लिए हमें उलमा अहले सुन्नत अपने बुज़ुर्गों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए और अपने अकाबरीन जो अल्लाह के वलियों की सूरत में आए उनकी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए और दीनी माहौल से ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पर साहबा कराम की अक़ीदा तो मोहब्बत भी हो और अहले बैत की भी हो और औलिया ज़ाम की भी हो। उस अक़ीदे के पास हमें अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए भेजना चाहिए, वरना जहाँ पर साहबा की हो अहले बैत की ना हो, अहले बैत की हो साहबा की ना हो, औलिया की ना हो, उस जगह से हमें अपने बच्चों की उनकी सोहबत से दूर रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये जो दीनी अहले सुन्नत जमात के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनकी मायत में हमें इस काम को अंजाम देना चाहिए।
बेशक माशाल्लाह, आपने बड़ी प्यारी बातें इरशाद फरमाई। दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया अकीदे के हवाले से बच्चे बच्चे के जहनों में जो बात डाल रहे हैं वो कौन सी है? इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बात तो सबसे पहले ये है। फिर साहबा कराम की अक़ीदत मोहब्बत, अहले बैत की, औलिया इज़्ज़ाम की और सुन्नतों का पाबंद बनाना और उनको नेकी के उस पर चलाना। और सबसे बड़ी बात है अक़ीदे की दुरुस्तगी। और हर बच्चा मैं देख रहा हूँ जब से ये क़याम आया माशाल्लाह दावत इस्लामी का, तो उलमा की कसरत हुई। बच्चे जनाब अली घर घर मसाजिद जो हमारे अहले सुन्नत की नहीं होती थी, लोग हम परेशान होते थे, आज हमारे मोहल्ले में कई मसाजिद है अहले सुन्नत की जो कायम की। ये बहुत बड़ा उनका एहसान है सुन्नियों के ऊपर। और आपने देखा होगा कि अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने बच्चों को भी एक जहन दे दिया कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। आप की कोई ऐसी खसूसियत, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खसूसियत जो किसी और सहाबा में ना मिलती हो? आपकी ऐसी तो कई खसूसियत हैं जो मुझे इस वक्त याद आई। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जब विसाल मुबारक हो के आपका जनाजा के बारे में आपने फरमाया कि जब मेरी तदफीन का आए तो मेरा जनाजा नमाज के बाद सरकार के रोज़े के सामने रख देना, और अगर इजाज़त मिल जाए तो फिर मुझे अंदर दफन करना, वरना मुझे जन्नतुल बकी में। तो यही फरमाया गया कि जब साहबा ने यही अमल दोहराया तो अंदर से आवाज़ आई कि हबीब को हबीब से मिला दो। आप ये बताइए कि मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम क्या? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, माशाअल्लाह। आपका कोई लक़ब आपको याद होगा? एक तो सिद्दीक ही है जी, दूसरा अतीक था। आपकी निस्बत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या थी? निस्बत ससुर की थी, आपकी साहबजादी प्यारे आका के निकाह में थी। यारे गार का नाम सुनते ही तारीख का कौन सा वाक़या है जिसकी निस्बत गार से भी है? जो साथ लेके आप गार में पहुंचे थे, फिर वहाँ गार में पहले सरकार को बाहर छोड़ा, फिर आपने एक सुराख बंद किया अपने रुमालों से, कपड़ों से। फिर एक सुराख रह गया था, उसमें आपने एड़ी रखी थी, फिर सरकार को बुलाया था। फिर सरकार साहब आपके शाने पे सर के आराम फरमाते। तो वहाँ से सांप जो आका दीदार करना चाह रहा था ना, वो निकला और वो एड़ी में डसता रहा, लेकिन आपने एड़ी नहीं हटाई। इश्क़े मुस्तफ़ा में जब आपके आंसू गिरे, सरकार के चेहरे पड़े, जब सरकार ने पूछा तो जो आपने बताया। हमारे वालिदैन की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए बच्चों के अकीदे के हवाले से, कि हमारे बच्चों का अकीदा कैसा होना चाहिए? ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि हमारी वालिदैन की जिम्मेदारी से अपने बच्चों को अक़ायद सिखाएं। ख़ासकर अब जो मैं देख रहा हूँ, मैंने इतनी उम्र में ऐसा नहीं देखा, जो अब देख रहा हूँ कि लोगों कैसे कैसे बहकाया जा रहा है। तो ये हमें पहले अपने औलाद को सिखाना चाहिए कि हमारा अक़ीदा क्या, सरकार के बारे में क्या हो, सहाबा के बारे में क्या होना चाहिए। जैसे लोग सिखाते हैं उनको ये नहीं पता था, उनको इल्म नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। और जो ऐसा बोलता भी उससे हम कोसों दूर रहें। आज हमारे इस दौर में कोई हमारे वालिद साहब को ज़रा से भी गुस्ताखी करे, बुरा कहे, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बाद औक़ात हम कहते हैं नादानी में, यार सबसे मिलना चाहिए, उसे क्या जब अपने बाप की गुस्ताखी करने वाले से नहीं मिल सकते। जो सरकार की बारगाह में गुस्ताखी करे, उनकी शान को कम करे, उनकी इल्मियत को कम इजहार करे, उससे हम कैसे मिल सकते हैं। अपने बच्चों को भी सिखाएं कि वो हमारा मिलने काबिल हो ही नहीं सकता, ना हमारा दोस्त हो सकता है, ना रिश्तेदार। बल्कि अपने बच्चों के रिश्ते करते वक्त इसको लाजमी देखा करें कि इसके अकायद क्या हैं, वरना नस्लें की नस्लें तबाह हो जाती हैं। बेटे कर रहे हैं जब भी, बेटी का रिश्ता कर रहे हैं जब भी, अकायद ज़रूर देखें। माल दौलत हो ना हो, अकायद पहले देखें, उसके बाद रिश्ता करें, ताकि हमारी नस्लें सही चलें। आप ये बताइए कि मुसलमानों के पहले खलीफा, उनका नाम क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू बकर कुनियत थी और अब सदीक जो है आपका लक़ब था। आपका नाम अब्दुल्ला था। अगर दुनिया के अंदर दोस्ती की कोई मिसाल दी जाए तो जो दोस्ती का हक अदा किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? दोस्ती का हक तो मैं कहता हूँ कोई ऐसा हक किसी ने अदा किया ही नहीं होगा, और ना कोई कर सकता है ता क़यामत, जो हक इन्होंने अदा किया है। और किसी जगह पे भी आपको अकेला छोड़ा नहीं। मजीसन के नाज़रीन, आकाश हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के कदमों की धूल के सदके काश हम भी पक्के और सच्चे आशिक़ रसूल बन जाएं। आकाश हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو جائیں. آمین. الہی رحم فرما، خادم صدیق اکبر ہوں. الہی رحم فرما، خادم صدیق اکبر ہوں. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرصت کے لمحات ہے نعمت خدا کی جان لو، کر لو علم نیکیاں جنت کا یوں سامان لو.